of you. Again, I am coming back to my channel, Lasit Government Tool Guru. Today, I will discuss excellent MCQ 1 related to the Central Civil Services Medical Attendance Rules 1944 with complete explanation. So, it is my first MCQ. Already, I uploaded complete information about Central Civil Services Medical Attendance Rules. So my friends, please subscribe my channel and share my channel so that you can get notification for my upcoming videos, and definitely it will be useful for you for different type of exams. So definitely the session would be interesting one. So with patience you go through it and try to listen, and then definitely you can get information and you can get questions related to the examination point of view. So you see my WhatsApp number, it is 8327782034, and my Telegram channel link is there, t.me/bap82034. If you want to join my Telegram channel, join it, then you can get notification for my upcoming videos. Now I am going to start 21 MCQs in this MCQ 1 part. So definitely I will discuss around 80 to 100 questions related to the Central Civil Services Medical Attendance Rules 1944. So you see, question number 1. According to CS Medical Attendance Rules, the total number of consultations, here it is 1944. Okay, Central Civil Services Medical Attendance Rules 1944. Okay. The total number of consultations at an interval of 10 days normally is, basically allopathic case, consultation for particular disease, consultation time is 10 days. So 10 days actually 4 consultations. You remember, 10 days it is 4 consultations, and in 10 days also normally 10 injections. If the patient actually need injection, then 10 injections, and it can be related to the injections, actually it can be increased to 15, right? But 4 consultations, right? So answer is B, D. But in this case, you remember one very interesting fact I want to tell. Suppose 10th day if you consult, 10th day you consult and the doctor cannot prescribe any medicine. आप 10th डे में कंसल्ट कर रहे हो, जो 4th कंसल्टेशन है, और उसमें डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करेगा क्योंकि आप फुली रिकवर फ्रॉम द डिजीज. सो ये केस में आपका जो कंसल्टेशन फी है वो रिइम्बर्स होगा. कंसल्टेशन जो फी है वो रिइम्बर्स होगा. ठीक है. यदि यहां पर और एक बात, जस्ट यू लर्न इट, इफ 10th डे कंसल्टेशन अगेन डॉक्टर प्रेस्क्राइब मेडिसिन, क्योंकि आप डिजीज से फुल्ली रिकवरी नहीं हुए. ओके, इट मीन्स अगेन द 10th डे इट इज द 4th कंसल्टेशन, द पेशेंट एक्चुअली does not recover fully, then doctor prescribe medicine. So in this case actually consultation fee जो है, यदि डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है तो वहां पर जो कंसल्टेशन फी है वो रिइम्बर्स नहीं होगा. और बियॉन्ड 10th डे सपोज आप रिकवरी नहीं करते हो, तो बियॉन्ड 10th डे में वो प्रोलॉन्ग डिजीज हो जाता है, तब आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. ठीक है. नॉर्मली 10 डेज होता है, 10 डेज में 4 कंसल्टेशंस होता है. यदि द पर्सन इज नॉट रिकवर फ्रॉम द डिजीज, तो 10th डे के बाद ओपीडी को जाना पड़ेगा, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में. ओके, जो मेडिकल ऑफिसर है उसके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा. तो ये मैं डिस्कस किया था मेरा प्रीवियस वीडियो में. तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन इज डी, आंसर इज डी. चलो क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे. If the treatment is expected to be prolonged, requiring many consultations, and several injections,
spread over a period of more than 10 days, the patient should be referred to which department of a government hospital? मैं बताया था नॉर्मली कंसल्टेशन जो होता है 10 डेज होता है एलोपैथिक केस में, और आईएमएस में जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे होम्योपैथिक है कि आयुर्वेदिक है, इसमें 40 डेज, ठीक है, 40 डेज में वही 4 कंसल्टेशंस, 10 डेज इंटरवल में 1 कंसल्टेशन रहेगा, ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। मगर नॉर्मली एलोपैथिक में 10 डेज रहता है, 4 कंसल्टेशंस रहता है, और 4 कंसल्टेशंस में 10 इंजेक्शंस एंड इट कैन बी इंक्रीज टू 15। बट यदि मोर कंसल्टेशंस रिक्वायर्ड, कि मोर इंजेक्शंस एक्चुअली रिक्वायर्ड, देन वो कहां पर रिफर किया जाएगा पेशेंट को? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को रिफर कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट मेंबर हु इज एलिजिबल फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। तो आप देखा होगा जो CS मेडिकल रूल्स 1944, आप सेक्शन 4 मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, कंप्लीटली वहां पर दिया गया है डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के बारे में। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया है कि हु इज एलिजिबल फॉर रीइंबर्समेंट, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 4 देख लीजिए, 7 सेक्शन से CSMA रूल्स 1944 में 7 सेक्शन से, सेक्शन 1 में 11 रूल्स है, ठीक है, और ये सेक्शन 4 में फैमिली डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के ऊपर डिस्कस किया गया है। चलो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यहां पर पूछा है कि डिपेंडेंट मेंबर हु इज एलिजिबल, डाइवोर्स्ड डॉटर्स ये एलिजिबल है, विडोड डॉटर्स एलिजिबल है, विडोड सिस्टर्स एलिजिबल है, ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप फैमिली मेंबर्स को देख लीजिए, वहां पर जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें था कि आप सपोज आपको कोई अडॉप्ट किया है, तो अडॉप्ट पेरेंट्स को लेंगे, रियल पेरेंट्स को नहीं लेंगे, अडॉप्ट पेरेंट्स को लेंगे यदि आपको कोई अडॉप्ट किया है, ठीक है। और इसमें ब्रदर मीन्स माइनर ब्रदर, यदि सन का बात आता है, नॉर्मल सन का बात आता है, तब एज लिमिट है 25 ईयर्स, ऑप्शन है आइदर 25 ईयर्स और अर्निंग मनी थ्रू जॉब और मैरिड, जो भी अर्ली होगा। और यदि बेसिकली डॉटर का बात आता है, कोई इसमें लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है, मगर मैरिड और अर्निंग मनी जब हो जाता है तब डिपेंडेंट बॉन्ड हो जाता है। और बेसिकली स्टेप केस में स्टेप मदर, नॉट स्टेप फादर, स्टेप मदर। तो ऐसे, और जो डिसेबल ब्रदर है कोई लिमिट नहीं है, डिसेबल सन है कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट, ठीक है। तो इसको मेरा देख लीजिए, सेक्शन 4 CSMA रूल्स 1944 मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर सब एलिजिबल है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट, टू एनेबल hassle free reimbursement for a government servant. 4 options given, so you can arrange it in systematic order. Whenever you are sick, consult your AMA. Second option, you go to a hospital for admission, inform the AMA, authorized medical attendant, about the fact that you are a central government servant. Get all bills, receipts, essentiality certificates, etc. daily signed by the AMA. Prepare your claims within the time limit. So when you are sick, then consult with your authorized medical attendant. तो फर्स्ट ऑप्शन आई आ जाएगा, ये फर्स्ट है, क्योंकि जब आप सिक हो जाएंगे तब आपका जो ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट आपका डिपार्टमेंट में है, ठीक है, उनके साथ कंसल्ट करना है, ठीक है, आपका जो ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। नेक्स्ट वन भाई सेकेंड ऑप्शन होगा, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में एडमिशन लेंगे, इन्फॉर्म द, आप ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट को इन्फॉर्म करना है कि इन्फॉर्म द एमए अबाउट द फैक्ट दैट यू आर ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, क्योंकि आपका बेसिक पे के हिसाब से, चाहे आपको जनरल वार्ड, सेमी वार्ड और प्राइवेट वार्ड, ओके, तो आपको बताना है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और ये मेरा बेसिक पे है, उसके हिसाब से आपको इट मींस फैसिलिटीज मिलेगा। अप टू 47,600 जनरल है वार्ड, 47,601 टू 63,100, देखिए अप टू दिस मच जनरल वार्ड। जब 47,601
263,100 ये सेमी वार्ड होगा, ठीक है, और 63,101 से प्राइवेट वार्ड हो जाएगा। तो आपको जब भी हॉस्पिटल में एडमिशन लेना है, यू मस्ट इन्फॉर्म टू योर ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट अबाउट द फैक्ट एंड जस्ट डिस्क्लोज योर बेसिक पे। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, आई हो गया, डबल आई हो गया। थर्ड, आपको सभी बिल्स, रिसिप्ट्स, एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट ये सब लेना है। ओके, आफ्टर यू नो इट मींस रिकवरी फ्रॉम द डिजीज व्हेन यू लीव द हॉस्पिटल, देन एट दैट टाइम सभी बिल्स, रिसिप्ट्स, एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट ये सब डेली साइंड बाय द ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट। वहां पर जो मेडिकल ऑफिसर होगा, जो फिजिशियन होगा, जो सिविल सर्जन होगा, जो आपको ट्रीट करेगा, वही आपका ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा। और प्रीफर योर क्लेम्स विद इन द टाइम लिमिट। आप जो क्लेम करोगे, आपका टाइम लिमिट विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, विद इन 6 मंथ्स आपको इट मींस क्लेम करना है। यदि आप यहां पर भी है, डायरेक्टली डिपार्टमेंट भी एडवांस देता है हॉस्पिटल को। यदि आपका डिपार्टमेंट हॉस्पिटल्स को एडवांस दिया है, तो जब आप रिलीज हो जाओगे 1 मंथ के अंदर आपको बिल एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली यदि आपका डिपार्टमेंट हॉस्पिटल को एडवांस नहीं दिया है, इस केस में नॉर्मली लिमिट 6 मंथ्स होगा। विद इन 6 मंथ्स यू कैन सबमिट ऑल योर बिल्स, ओके, एंड क्लेम फॉर रीइंबर्समेंट। तो ये चारों अरेंज है, आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई भी। तो जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पैकेज रेट prescribed for the purpose of annual medical examination in respect of men and women officers respectively। तो जो annual medical examination है, आप देखा होगा जो ग्रुप ए ऑफिसर्स है, ग्रुप ए ऑफिसर्स, ठीक है, इसके ऊपर मैं डिस्कस किया था, जिनका एज है अबव 40, ठीक है, ग्रुप ए ऑफिसर्स अबव 40, तो उनका एक एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो मेल के लिए 2000 रुपीज रिइंबर्स होगा और फीमेल के लिए 2200 होगा, ठीक है। एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन में ये लिमिट के हिसाब से रिइंबर्समेंट होगा। तो ग्रुप ए ऑफिसर्स आपको याद रखना है, ग्रुप ए ऑफिसर्स, ठीक है, अबव 40, ओके, मोर देन 40 एज होना चाहिए। मेल ऑफिसर जो है 2000 रुपीज एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन में रिइंबर्स होगा। जो फीमेल है, फीमेल ऑफिसर है, 2200 रिइंबर्स होगा। अभी आंसर मिल गया। तो यहां पे आंसर है मेन एंड वोमेन दिया है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हु विल बियर द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल अप्लायंसेस ऑफ बेनिफिशियरीज। आर्टिफिशियल अप्लायंस चाहिए तो आपका डिपार्टमेंट क्या करेगा, डायरेक्टली जो सप्लायर है उसको पेमेंट किया जाएगा डायरेक्टली। मगर मेंटेनेंस का बात आता है तो जो बेनिफिशियरी है वही करेगा, ठीक है। जो आर्टिफिशियल अप्लायंसेस है उस केस में क्या एक रूल है कि डायरेक्टली डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसका कोटेशन रहेगा, ओके, जो भी आपको अप्लायंस उसका कोटेशन रहेगा, उसके हिसाब से आपका डिपार्टमेंट डायरेक्टली सप्लायर को पे कर देगा। मगर मेंटेनेंस का बात जब आएगा तब वो बेनिफिशियरी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बेनिफिशियरी टू बियर द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल अप्लायंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिट बी इज द आंसर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ ए डिपेंडेंट डॉटर टू बी एलिजिबल फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम्स। में बताया था कि डॉक्टर्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, मगर दो ऑप्शन है, एक है मैरिज है, ओके, एक है मैरिज है और एक है और अर्निंग मनी थ्रू जॉब, अर्निंग मनी, ठीक है। जब ये हो जाएगा डिपेंडेंट बंद हो जाएगा, मगर एज लिमिट कुछ नहीं है, ओके। जब उसका मैरिज हो जाएगा और वो सी इज एबल टू अर्न मनी, तब डिपेंडेंट बंद हो जाएगा। ए व्हाट इज द एज लिमिट, सो एज कोई लिमिट नहीं है। तो यहां पर देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टिल सी स्टार्ट्स अर्निंग और गेट्स मैरिड इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज लिमिट। तो ये दोनों में जो अर्लियर होगा, कोई एज लिमिट इसके लिए नहीं है, ठीक है। मगर यहां पर थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं कि यदि सॉन का बात आएगा तब 3 ऑप्शन है, एज लिमिट है 25 ईयर्स,
और है मैरिज, ठीक है, और अर्निंग मनी। तो 3 ऑप्शन है, जो भी अर्ली होगा, ठीक है, जो भी अर्ली होगा उसके हिसाब से डिपेंडेंट मंथ हो जाएगा। एज है 25 ईयर्स, अप टू 25 ईयर्स, और मैरिज और अर्निंग मनी, जो भी इसमें अर्ली होगा सन के लिए। मगर इसमें डॉटर के लिए कोई एज ग्रुप एज लिमिट नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, as per CS medical attendance rules, what is the frequency at which a government servant may have his eyesight tested? फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो आप आई साइट टेस्ट करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो बहुत इजी है, मेरा प्रीवियस वीडियो में बोला था, एवरी 3 इयर्स, वंस इन एवरी 3 इयर्स। यदि आप अभी आई टेस्ट किया है तो आफ्टर 3 इयर्स अगेन यू विल गो फॉर आई टेस्ट। सो वंस इन एवरी 3 इयर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, as per CS medical attendance rules, the charges incurred for any special nursing during inpatient treatment shall be reimbursed to the extent which is in excess of। तो जो स्पेशल नर्सिंग है, स्पेशल नर्सिंग में इनपेशेंट, एक्चुअली इनपेशेंट ट्रीटमेंट मीन्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आपका जो डिजीज क्रिटिकल था, ऐसा कुछ ऑपरेशन हुआ है जिसमें स्पेशल नर्सिंग का जरूरत है। स्पेशल नर्सिंग केस में ये है, ₹150 पे किया जाएगा स्पेशल नर्सिंग के लिए 12 आवर्स में, ठीक है, ये है एक्चुअली। मगर वो यहां पर दिया है कि साल भी कितना रीइंबर्स हो सकता है, ये तो ₹150 12 आवर्स के लिए पेमेंट होगा, ओके। मगर कितना पेमेंट हो सकता है, आपका जो बेसिक पे है उससे 25% ज्यादा, 25% एक्सेस ऑफ योर बेसिक पे, 25% एक्सेस, ओके, ऑफ योर बेसिक पे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसके हिसाब से पेमेंट होगा। 12 आवर्स के लिए ₹150 पेमेंट होगा स्पेशल नर्सिंग के लिए। मगर जो कितना पेमेंट, कितना रीइंबर्स हो पाएगा ना, जो आपका बेसिक पे है उससे ज्यादा आप 25% ले जाओ, 25% एक्सेस ओवर बेसिक पे, उससे ज्यादा रीइंबर्स नहीं होगा। तो क्लियर? तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 25% ऑफ द पे ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द पीरियड ऑफ स्पेशल नर्सिंग इन एक्सेस वाज नेसेसरी, ठीक है, राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज कॉम्पिटेंट टू कंडोन ए डिले इन द सबमिशन ऑफ मेडिकल क्लेम्स? मैं बताया था, नॉर्मली मेडिकल क्लेम आपको करना है विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, विद इन 6 मंथ्स आपको मेडिकल क्लेम्स करना है। यदि आप मेडिकल क्लेम नहीं कर रहे हो, सपोज वो 6 मंथ से ज्यादा हो जाता है, तो उसको कंडोन कौन करेगा? हम जानते थे बेसिकली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जॉइंट सेक्रेटरीज भी कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो ये तीनों ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर ऑल ऑफ द अबव। मगर आपको याद रखना है, तो इस केस में बेसिकली विद इन 6 मंथ्स होता है, ठीक है। और यहां पर एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, डायरेक्टली इफ योर डिपार्टमेंट डायरेक्टली पे एडवांस to the hospital, then when you release from the hospital, then within 1 month actually you must adjust the bill। और जो भी सपोज आपका जो एडवांस दिया था, डायरेक्टली आपका डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल को एडवांस दिया था, आपको जो फिजिशियन ट्रीट कर रहा था वो एक एंटीसिपेटेड कॉस्ट, इट मीन्स कितना खर्च होगा, ड्यूरेशन क्या होगा दिया था, तो उसका 90% एक्चुअली एडवांस दे दिया था डायरेक्टली डिपार्टमेंट पे टू द हॉस्पिटल। जब आप रिकवरी कर लिए और आप रिलीज जिस डेट में हो गया, उसका 1 मंथ के अंदर बिल को एडजस्ट करना है। यदि कुछ सरप्लस अमाउंट हॉस्पिटल के पास है, तब आपका जो ऑफिस है वो इन्फॉर्म करता है कि जो सरप्लस अमाउंट है कि आप रिटर्न कर दो, हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करता है। मगर नॉर्मली विद इन 6 मंथ्स होता है। यदि विद इन 6 मंथ्स आप बिल सबमिट नहीं कर पाए एंड इट इज मोर देन 6 मंथ्स, देन डेफिनेटली यू गिव द प्रॉपर जस्टिफिकेशन, यू गिव द प्रॉपर सर्कमस्टेंस, ओके। बेसिकली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करते हैं, मगर सम जॉइंट सेक्रेटरीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो भी कंडोम कर सकते हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा, इस टाइप को कंफ्यूजन नहीं होना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11,
What period of stay in a hospital is termed as average stay for inpatient treatment under CS Medical Attendance Rules 1944? आपको याद रखना है, यदि आपका इनपेशेंट ट्रीटमेंट हो रहा है हॉस्पिटल में तो एवरेज स्टे कितना होगा। तो आपको मैं बताया था कि एवरेज स्टे 2 वीक्स होता है, एवरेज स्टे 2 वीक्स होता है, ठीक है। और एक है मोर देन 3 वीक्स हो जाएगा तो वो मोर देन 3 वीक्स हो जाएगा तो उसको प्रोलॉन्ग्ड स्टे बोलते हैं, ठीक है, उसको प्रोलॉन्ग्ड स्टे बोलते हैं। ये 2 क्वेश्चन बार बार आता है। तो यहां पर एवरेज स्टे पूछा है तो 2 वीक्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एवरेज स्टे 2 वीक्स, मोर देन 3 वीक्स होगा, इट मींस मोर देन 21 डेज, वो प्रोलॉन्ग्ड स्टे हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर दे दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट वन। जब ये आता है ना करेक्ट के ऊपर फर्स्ट आप अंडरलाइन लगा दो, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। फर्स्ट यू रीड द स्टेटमेंट थोरोली। द पैकेज रेट फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी इन्वॉल्विंग लाइव लिवर डोनर इज ₹11,50,000 plus pre-transplant evaluation of donor and recipient is 2,50,000। ये जो ऑप्शन करेक्ट है, सपोज लिवर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, मगर एक ऑप्शन है लाइव लिवर डोनर, जो आपका डोनर है वो लाइव है, ठीक है, आपको डोनेट कर रहा है, लाइव लिवर डोनर, ठीक है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी नॉर्मली जो पैकेज होता है 11,50,000 होता है, और एक कुछ प्री ट्रांसप्लांट एवेल्युएशन होता है, माने सर्जरी के पहले कुछ एवेल्युएशन होता है डोनर का रेसिपिएंट का, उसमें 2,50,000 मिलेगा। तो प्री ट्रांसप्लांट 2,50,000 पैकेज रेट, और जो ट्रांसप्लांट सर्जरी है 11,50,000। मगर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइव लिवर डोनर, ठीक है, ये करेक्ट है। द पैकेज रेट फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी इन्वॉल्विंग ए डिसीज्ड डोनर, यहां पर डोनर का डेथ हो चुका है और उसका लिवर को लाके ट्रांसप्लांट किया जाएगा। डिसीज्ड डोनर केस में 11 लाख है, ये करेक्ट है। डिसीज्ड केस में 11 लाख है पैकेज, ठीक है, मगर लाइव लिवर डोनर में एक 11,50,000 पैकेज है सर्जरी, जो सर्जरी ट्रांसप्लांट के लिए, प्लस प्री ट्रांसप्लांट। प्री ट्रांसप्लांट मीन्स एवेल्युएशन किया जाएगा जो डोनर का और रेसिपिएंट का, मगर डिसीज्ड डोनर का लिवर को यूज किया जाएगा तो 11 लाख पैकेज है, ये ठीक है। ये तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, 30 डेज स्टे फॉर द रेसिपिएंट एंड 15 डेज फॉर द डोनर स्टार्टिंग 1 डे प्रायर टू द ट्रांसप्लांट सर्जरी, ये भी करेक्ट है। रेसिपिएंट को 30 डेज रहना है और डोनर को 15 डेज रहना है, ठीक है। और ये जो डे काउंट होगा 1 डे प्रायर टू द ट्रांसप्लांट सर्जरी, 1 डे प्रायर, याद रखना है आपको। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्रॉस मैचिंग चार्जेस फॉर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड इन पैकेज। क्रॉस मैचिंग चार्जेस जो मैच होगा, ब्लड मैच होगा, जैसे डोनर का रेसिपिएंट का ब्लड प्रोडक्ट्स, मगर ये पैकेज में इंक्लूड नहीं होगा। ये जो क्रॉस मैचिंग होगा ये इंक्लूड नहीं होगा पैकेज में, ठीक है, तो याद रखना है। तो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी उसके ऊपर हम थोड़ा देखेंगे, ये लिवर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर यहां पर मैं डिटेल्स बोल देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी अभी मैं बताया आपको, लाइव लिवर डोनर सर्जरी के लिए 11,50,000 प्लस जो प्री ट्रांसप्लांट एवेल्युएशन होगा उसके लिए 2,50,000, तो मिलाकर ऐसे 14 लाख हो जाता है। मगर यहां पर ऑप्शन है लाइव लिवर डोनर, 11,50,000 प्लस 2,50,000, 14 लाख हो गया। नेक्स्ट वन, डिसीज्ड डोनर, यदि डिसीज्ड डोनर है, डिसीज डोनर का लिवर यूज किया जाएगा तो 11 लाख सर्जरी में, ओके, जो ट्रांसप्लांट सर्जरी में 11 लाख पैकेज रेट है, ठीक है। और ये पैकेज में क्या इंक्लूड होगा, द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स ड्यूरिंग द ऑर्गन रिट्रीवल एंड द कॉस्ट ऑफ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन एटसेट्रा, ओके। The package charges include the following: 30 days stay of the recipient and 15 days for the donor starting 1 day prior to the transplant surgery। 30 days stay करेगा रेसिपिएंट, 15 डेज स्टे करेगा डोनर। मगर ये जो डेज जो काउंट कैसे करेंगे,
फ्रॉम व्हिच डे एक्चुअली वी काउंट, 1 day प्रायर टू द सर्जरी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्जेस फॉर मेडिकल एंड सर्जिकल कंज्यूमेबल्स, मेडिकल एंड सर्जिकल कंज्यूमेबल, सर्जिकल एंड प्रोसीज्योर चार्जेस, जो भी ऑपरेशन है, सर्जिकल चार्जेस है, सर्जिकल प्रोसीज्योर है, वो सब पैकेज में आ जाएगा। ठीक है, मगर पैकेज में क्या नहीं आएगा, द पैकेज एक्सक्लूड्स। ओके, क्या क्या नहीं आएगा पैकेज में, कुछ ड्रग्स, चार्जेस फॉर ड्रग्स लाइक जैसे वैसिलिसिमम, डाक्लिजुबाम, HBIG एंड पेग इंटरफेरन। तो ये इस तरीका का ड्रग्स पैकेज में नहीं आएगा, इस तरीका का ड्रग्स पैकेज में नहीं आएगा। और क्रॉस मैचिंग में बोला था, जब क्रॉस जो ब्लड मैचिंग होता है वो भी जो चार्जेस लगेगा ये पैकेज में नहीं आएगा, ये अलग आएगा। इट मींस ये रिम्बर्स होगा मगर अलग आएगा। ठीक है, अलग रिम्बर्समेंट, मगर पैकेज रेट में ये नहीं आएगा। जैसे लाइव डोनर है तो वो 14 लाख है और डिसीज डोनर है 11 लाख है, तो पैकेज में ये नहीं आएगा। ये जो ड्रग्स और ये जो क्रॉस मैचिंग चार्जेस ऑफ फॉर ब्लड ये नहीं आएगा, ये अलग रिम्बर्स होगा मगर पैकेज में नहीं आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, आज पर CS मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, व्हेन शुड ए बिल फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम्स बी टेकन अप फॉर कंडोनेशन, कब कंडोनेशन के लिए अप्रोच किया जाएगा। जानते हो, बिल का जो विद इन 6 मंथ्स आपको बिल सबमिट करना है, विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, कोई रिइंबर्समेंट करना है मेडिकल बिल्स आपको विद इन 6 मंथ सबमिट करना है। विद इन 6 मंथ्स मीन्स आप कैसे काउंट करेंगे, जिस आज सपोज आपका रिलीज हो गया हॉस्पिटल से तो कल से काउंट करो, तो वही 6 मंथ्स काउंट होगा। यदि 6 मंथ से ज्यादा हो जाता है ओके, तब आपको जस्टिफाई करना है। यू मस्ट गिव द प्रॉपर जस्टिफिकेशन, यू मस्ट गिव द प्रॉपर सर्कमस्टांस कि फॉर दैट रीजन एक्चुअली आई कुड नॉट बी एबल टू सबमिट माई बिल विद इन 6 मंथ्स। तो ये यहां पर ऑप्शन डी आंसर है, बिल सबमिटेड आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, कंडोनेशन के लिए जाएगा। ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बेसिकली कंडोन करते हैं, आपका डिपार्टमेंट का जो हेड है वही कंडोन करेंगे, वो सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, एवेलुएट करेंगे, असेस करेंगे। यदि उनको लगेगा कि हाँ जो रीजन आप दिया है, जो सर्कमस्टांस दिया है वो ऑथेंटिक है, तब वो कंडोन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आज पर CS मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, reimbursement of expenditure incurred on IVF treatment, okay, will be allowed for how many cycles। जो IVF ट्रीटमेंट है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट, इसका जो फुल फॉर्म है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट। ओके, फर्टिलाइजेशन, जिनका चाइल्ड इशू नहीं है, जो कपल का चाइल्ड इशू नहीं है, ठीक है, नॉर्मली चाइल्ड इशू नहीं हो रहा है, तो वो ये केस में जाएंगे इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, जिनका एज है 21 to 39 ईयर्स फीमेल। ओके, ये लिमिट है। और एक बार आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें 3 साइकिल्स होता है। कितना साइकिल्स होता है? 3 साइकिल्स होता है। ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिन जिन कपल का बेसिकली चाइल्ड इशू नहीं है, तो वो इस इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन में जाते हैं। एज ग्रुप जो फीमेल का होता है 21 to 39 ईयर्स है, और इसमें 3 साइकिल्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट, द एज ऑफ वुमेन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बिटवीन आएगा 21 and 39 ईयर्स, इसके अंदर आएगा बिटवीन 21 and 39 ईयर्स। Reimbursement of expenditure incurred on IVF procedure will be allowed up to a maximum of 3 phase cycles। 3 phase cycles, यही तो क्वेश्चन आया था। और इस साइकिल में ये जो अमाउंट जो आप रीइंबर्स होगा, नॉट एक्सीडिंग 65,000 इस साइकिल में, पर साइकिल। ओके, एक्चुअल और 65,000 जो उसमें लेस होगा, whichever is lower will be allowed। आप दो ले जाइए, एक्चुअल ओके और 65,000। ओके, इसमें जो भी लो होगा वही रिइंबर्समेंट होगा, मगर जो अमाउंट इज पर साइकिल। ठीक है, पर साइकिल 3 फेज साइकिल से देयर विल बी 1 टाइम परमिशन, एक बार परमिशन मिलता है, और उसमें 3 फेज साइकिल्स होते हैं। ठीक है, 3 साइकिल्स होते हैं, और पर साइकिल
जो अमाउंट रीइंबर्स होगा नॉट एक्सीडिंग 65,000, ठीक है। और जो एज ग्रुप रहेगा बिटवीन 29 टू 39 ईयर्स, 21 टू 39 ईयर्स, ठीक है, इसी किसी के अंदर जो फीमेल का एज रहेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, as per CS medical attendance rules, what is the frequency and limit prescribed for reimbursement of the cost of the boot for patients of polio? जो पोलियो पेशेंट है उनका जो कॉस्ट ऑफ द बूट है, क्या फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी में उनको इट मींस वो बूट के लिए रीइंबर्समेंट मिलता है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपको याद रखना है कि वंस इन 3 इयर्स फॉर 3 टाइम्स, ओके, वंस इन 3 इयर्स, और टोटल सर्विस कैरियर में 3 टाइम्स मिलेगा, ओके। जो पोलियो पेशेंट है, जो पोलियो एम्प्लॉय है, उसका जो बूट जो फ्रीक्वेंसी जो रहेगा चेंज होगा वंस इन 3 इयर्स, और वो भी लाइफ टाइम में लाइफ जो सर्विस टाइम होता है उसमें 3 टाइम्स हो पाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को चलेंगे। व्हाट इज द फाइनेंशियल लिमिट अप टू व्हिच पावर्स आर डेलीगेटेड टू हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री टू सेटल केसेस ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम्स फॉर ट्रीटमेंट्स ऑब्टेन्ड इन एन इमरजेंसी एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम और क्लिनिक? यदि कोई इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी सपोज कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस केस में पास में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कोई रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल नहीं है, तो वहां पर क्या कर दिया जाएगा, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है कि प्राइवेट नर्सिंग होम है कि क्लिनिक है, वहां पर पेशेंट को एडमिट कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नियर बाय एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है कि रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल नहीं है और पेशेंट वो लाइफ थ्रेटनिंग में है, तो इमीडिएटली कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम क्लिनिक में उसको एडमिट कर दिया जाएगा। मगर फाइनेंशियल लिमिट क्या रहेगा, व्हाट इज द फाइनेंशियल लिमिट अप टू व्हिच पावर्स आर डेलीगेटेड टू हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री टू सेटल केसेस ऑफ रिइंबर्समेंट? तो यहां पर जो फाइनेंशियल लिमिट रहेगा अप टू 2 लाख रहेगा, ठीक है। व्हाट इज द फाइनेंशियल लिमिट अप टू व्हिच पावर्स आर डेलीगेटेड टू हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री टू सेटल केसेस ऑफ रिइंबर्समेंट? यहाँ यदि प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम की क्लिनिक में जो एक्सपेंडिचर होगा, ओके, उसमें जो फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर रहेगा हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के पास अप टू 2 लाख रहेगा, ठीक है, फाइनेंशियल लिमिट। उससे ज्यादा होगा तो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल डिवीजन को जाएगा, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल डिवीजन में जाएगा, वहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर्स होते हैं इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल डिवीजन में, कुछ सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है, उनके पास जाएगा, इससे ज्यादा होगा तो। मगर अप टू 2 लाख वो रिइंबर्समेंट हो जाएगा, फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु obtained treatment in a private hospital be shifted to a government or recognized hospital after the emergency is over? सपोज इमरजेंसी, सपोज सडनली एक्सीडेंट हो गया, पास में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है कि रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल नहीं है, तब वो पेशेंट को इमीडिएटली प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा। क्या उसका जो इमरजेंसी कंडीशन जब ओवर हो जाएगा, जो क्रिटिकल कंडीशन था वो ओवर हो गया, क्या उसको फिर शिफ्ट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कि रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल को? क्योंकि अभी इमरजेंसी ओवर हो गया, इमरजेंसी के वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया कि नाउ इमरजेंसी इज ओवर, कैन ही स्विच ओवर, कैन द पेशेंट स्विच ओवर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स? ये नहीं होगा। वहां पर जो हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है, यदि वो चाहेगा, यदि हॉस्पिटल अथॉरिटी चाहेगा, हाँ, उसको आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कोई रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल ले सकते हो, तब होगा, जबरदस्ती नहीं ले सकते। हाँ, बोलेंगे इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन था, वो ओवर हो गया, अभी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ले जाएंगे कि कोई रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल को ले जाएंगे, ये नहीं होगा। जब तक हॉस्पिटल अथॉरिटी एग्रीड नहीं होगा तब तक आप नहीं ले सकते। तो यहां पर आंसर मिल गया, ही शुड गेट डिस्चार्ज ओनली व्हेन द हॉस्पिटल अथॉरिटीज डिस्चार्ज हिम फ्रॉम द प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 18, when is the declaration regarding the income and the residence of parents to be furnished by the government servant to the controlling officer? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका बेसिकली पेरेंट्स है, ठीक है, वो किसके पास रहते हैं, उनका रेसिडेंस क्या है,
क्या वेदर पेरेंट्स रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ना पेरेंट्स रिजाइडिंग, इट मीन्स इन आउटसाइड द पेरेंट्स एक्चुअली दे डू नॉट रिजाइड विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि उनका जो इनकम क्या है। तो ये जो डिक्लेरेशन ओनली पेरेंट्स का इनकम, दो चीज, एक है इनकम और वो कहां पर रहते हैं, उनका रेसिडेंस ये आपको डिक्लेयर कर देना है। जो कैलेंडर ईयर है, माने फर्स्ट मंथ, कैलेंडर ईयर का फर्स्ट मंथ क्या है, जनवरी है। तो जनवरी में आपको डिक्लेयर कर देना है कि मेरा पेरेंट मेरे पास है, कि वो आउटसाइड में है, कि उनका इनकम यही है, तो आपको डिक्लेयर कर देना है। तो वो आंसर मिल गया, बिगिनिंग ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर। जब कैलेंडर ईयर बिगिन हो गया, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर, इट मींस बेसिकली जनवरी मंथ में आपको डिक्लेयर कर देना है, ठीक है, कि मेरा पेरेंट एक्चुअली माय पेरेंट इज रिजाइडिंग विथ मी, और पेरेंट रिजाइडिंग विथ, इट मींस रिजाइडिंग इन आउटसाइड, कि इट इज द इनकम ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, डिपेंडेंट का जो इनकम जो होता है ना, वो बेसिकली सपोज 9,000 प्लस जो हो जाएगा डियरनेस अलाउंस, ठीक है, डियरनेस पे बोलते हैं, डीपी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उससे कम रहेगा। जैसे 9,000 प्लस उसके ऊपर जो डियरनेस पे है, ठीक है, इससे कम रहेगा इनकम, तब हम डिपेंडेंट मानेंगे। यदि कोई फैमिली पेंशन मिलता है, ठीक है, तो ये सब चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहां पर आंसर आपको मिल गया, बिगिनिंग ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर आपका पेरेंट्स का रेसिडेंस और आपका पेरेंट्स का इनकम को आपको डिक्लेयर करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी फॉर द रीइश्यू ऑफ मोटराइज्ड व्हील चेयर एंड ट्राईसाइकिल फॉर बेनिफिशियरीज। जैसे कुछ डिसेबल एम्प्लॉइज है, उनको मोटराइज्ड व्हील चेयर चाहिए कि ट्राईसाइकिल चाहिए, उनको क्या पीरियोडिसिटी है? पीरियोडिसिटी है आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स उनको रीइश्यू होगा जो व्हील चेयर है और ट्राईसाइकिल फॉर बेनिफिशियरीज है। तो ट्राईसाइकिल और मोटराइज्ड व्हील चेयर आफ्टर 5 ईयर्स ही ओके मिलेगा, जो पीरियड रहेगा। अभी मिला है तो आफ्टर 5 ईयर्स फिर मिलेगा, रीइश्यू होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी टाइम्स कैन ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट चेंज द डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ पेरेंट्स इन लॉ फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। तो जो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके लिए ऑप्शन है, क्या है ना, एक है सपोज पेरेंट्स इन लॉ है, एक है पेरेंट्स इन लॉ, ठीक है, और एक है ओनली पेरेंट्स है, उसका जो पेरेंट्स। तो वो किसको चूज करेगा मेडिकल अटेंडेंस के लिए? तो इसको चेंज वो कर सकता है, मगर सर्विस कैरियर में ओनली वंस चेंज करेगा। सपोज आप ऑप्शन अभी ले लिए पेरेंट्स, अभी ऑप्शन ले लिए, मगर उसको चेंज करना चाहते हो। अभी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट खुद का पेरेंट्स को ले लिया, मगर अभी वो चेंज करना चाहता है कि पेरेंट्स इन लॉ को लेना चाहता है। तो ओनली वंस, सर्विस कैरियर में ओनली वंस इसको चेंज कर सकता है। ओके, तो ऑप्शन मिल गया आंसर। सो ओनली वंस ड्यूरिंग हर एंटायर सर्विस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल अटेंडेंस रूल्स ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट बिफोर रिटायरमेंट। आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, बट जब आपका डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से तब आपका रिटायरमेंट हो चुका है, बट इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर रिटायरमेंट। तो जो आपका सुपर अन्वेषण का जो डेट है वो हॉस्पिटल में चला गया, क्योंकि जस्ट बिफोर रिटायरमेंट आप एडमिट हो गए, और जब हॉस्पिटल से रिलीज हो गए तब आप ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हो। तो उस केस में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि आपका जो बिल आप सबमिट करोगे तो वो कौन पे करेगा? यही तो है, क्योंकि बिफोर रिटायरमेंट आप एडमिट हो गए, आफ्टर रिटायरमेंट आपका डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपका जो मेडिकल बिल है उसको कौन रिइंबर्स करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट देगा? तो आपका खुद का ऑफिस ही देगा। जिस ऑफिस से आप रिटायर करोगे ना, वही ऑफिस ही आपको आप बिल सबमिट करोगे उसी ऑफिस में, और उसी ऑफिस से आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा। तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ही विल बी रिइंबर्स्ड द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम बाय हिज ऑफिस। जो भी आप खर्च किया है, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे थे और उसी से आपका रिटायरमेंट हो गया, उसी ऑफिस में आप बिल सबमिट कीजिए और वहीं पर से ही आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा। तो ये आज 21 क्वेश्चंस था, ये मेरा MCQ 1 था। आप वेट कीजिए, अभी और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में लाऊंगा। सो 80 to 100 क्वेश्चंस में मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 के ऊपर मैं लाऊंगा। ठीक है, आज इतना ही है।
थैंक यू एंड नमस्कार।